Hello, friends. Welcome to the Gaurav Arya Show. And as usual, we have somebody who's a top end achiever in this entire game of life. A person who's a Khel Ratna, a Padma Shri, an Arjuna awardee, an Olympian. It's my honor and privilege to present to you Deepa Malik ji. Ma'am, a very, very warm welcome, ma'am. Thank you, Gaurav. An honor sitting across with you. Ma'am, the honor is absolutely mine, ma'am. मैम ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मैं तो ओलंपिक्स, मैंने आपके प्रोफाइल में ओलंपिक्स देखा ना. Paralympic. Paralympics, ma'am. हाँ. Paralympics is Olympics, ma'am. I saw it and it because this is something that we can only see on television. हम जैसे लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते उस लेवल का. ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? सोचा तो मैंने भी नहीं था गौरव. ये शुरुआत बस एक जर्नी थी एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी की. बार बार डिसेबिलिटी आती रही और along with disability came the conceptions, the stereotype, the myths around disability. I got my first attack of paralysis as a child when I was just 5 years old and started walking again as a 9-year-old. But in those 4 years, as a little girl, I understood कि हॉस्पिटल के कमरे के कोने में मेरी माँ क्यों रोती है. क्यों विजिटर्स जो मिलने आते हैं वो ये कह जाते हैं कि जिंदा लाश को ईश्वर उठा ले, पैरालाइज लड़की को पाल के क्या करोगे. वैसी जो भावनाएं रही लोगों की, वो सुनते सुनते खैर मैं चल पड़ी. I got married to an army officer. I had my first child. Devika met with an accident. She got paralyzed due to head injury. मैंने ये देखा कि 2-2.5 decades गुजर चुके थे मेरे बचपन में पैरालाइज होने में और मेरी बेटी के पैरालाइज होने में, लेकिन समाज में कुछ बदला नहीं था. नथिंग हैड चेंज्ड. जो बातें मेरी माँ ने मेरे लिए सुनी वही बातें मैंने मेरी बेटी के लिए सुनी. बिकॉज इट वॉज अ हेड इंजरी and doctors were not even telling whether her intellectual ability will be normal. Only with age we will know. And just when I was working very hard, exactly the way my parents worked hard on me, I started giving back the same dedication to my child, and my tumors came back. They came back exactly in the same year, the year I won a Navy Queen contest. My husband was at the staff course in Ooty. So when you are feeling so good about your body that you have won a beauty contest after being a mother of 2 daughters, and then suddenly doctors tell you that either you'll die or you will be paralyzed for the rest of your life. I chose life. फॉर्चुनेटली फॉर मी मेरी बहुत मोटिवेशन आई फौज के द्वारा, बिकॉज आर्मी उस वक्त कारगिल वॉर में थी और जिस हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी चल रही थी वहाँ पे हर घंटे चॉपर से यू गेटिंग वॉर वुंडेड सोल्जर्स, एंड एवरी सोल्जर हैड लॉस्ट एन आर्म और एन आई और अ लेग और मे बी बोथ लिम्स, एंड दे वर ऑल स्माइलिंग बिकॉज दे वर हैप्पी. The level of injury marked the level of their patriotism. Surrounded by such brave hearts, at the same time, 3rd June 1999, I was getting operated. Doctors had no hope, but I survived. I survived my second surgery. I survived complications, but I survived. Why I survived? Because there was somewhere love for life was there. I chose life over death, and I never gave up. Even struggling in the ICU for almost 3 weeks, I never gave up. And when I was alive, first thing I asked if my husband was also alive. फिर मुझे पता लगा हाँ वो भी जीवित हैं और मैं भी जिंदा बच गई हूँ, लेकिन छाती का निचला हिस्सा जा चुका है. मैंने बहुत मेहनत करी. I learnt my new body. I did my exercises very sincerely. Tried to be a good mother, a good wife. लेकिन सवाल वही था कि छाती का निचला हिस्सा पैरालाइज है, शी हैज़ नो कंट्रोल ऑन हर ब्लैडर एंड बाउल, ये जी के क्या करेगी. तो उसके बाद जो सफ़र रहा वो सिर्फ खुद को और लोगों को जीने का अंदाज सिखाने का रहा. ज़बरदस्त मैम. So ma'am, this is about the initial struggle that you faced. Why sports? I think sports actually happened accidentally to me.
It was never sports. I had, and that's the irony. एक educated, अच्छे background से आने के बाद भी I had no clue that हमारे देश में para sports होते हैं. And by 2005, I had rehabilitated. I had started a small garden restaurant. अपने आप को occupy करने के लिए. Unfortunately, my husband left army because उन्हें ये लगा कि जैसा लोगों ने बार बार कहा कि इसको ले लेके नहीं घूम सकते हैं, ये तो अब ट्रैवल नहीं कर पाएगी, where will you get the right accommodation all the time? So instead of solutions and learning about how to manage in an Indian scenario, dealing with a disability, which is chest below paralysis. When I say Indian scenario, I talk about the infrastructural challenges. And we have different geographical locations, and army cantonments are always far-fetched. And so accessibility is not visible. Hence, it seems unattainable. And out of love, my husband left army, thinking that now we have to be stationed in one place. I was taken to my in-laws' farmhouse, who were living a retired life, a retired general, having served the army. और सबने कहा दीपा बहुत लकी है. उसके हस्बैंड ने उसके लिए नौकरी छोड़ दी, उसके ससुराल वाले उसे रखे हुए हैं. एंड जब मैं रिहैबिलिटेशन के लिए हॉस्पिटल भी जाती थी, आई यूज्ड टू सी दैट वुमेन लाइक मी वो मायके से आती थी, वो ससुराल से नहीं आती थी. लेकिन डिस्पाइट दैट, the only identity I had was that of a lucky. And I love traveling. I love outdoors. I love social integration. I'm a very public person. I love to laugh. I love fashion. I love adventure. I was always a biker. Even biking was one hobby that got me and my husband together. And suddenly a sedentary life was not meant for me. So my first step in my mission of ability beyond disability was starting a restaurant, which gave me financial independence, and it also gave me social integration. I started talking to people who were coming from different sections of society. I suddenly, after a gap of almost 7-8 years, started meeting the younger generation and learnt about computers, information technology, Google, and then I started researching, and I realized bahar bahut kuch ho raha hai. People like me don't just live out of a house with a lot of servants around. There is something called independence. There's something called rehabilitation. And I said, why we in India don't know that? So I started all over again with the modern technology. And all I wanted to do was to be a biker again. Because even if I ran a restaurant, लोग कहते थे शायद husband चला रहे हैं. तो मुझे बस अपनी बॉडी से कुछ करना था, क्योंकि बॉडी के ऊपर इतने एलिगेशंस लग चुके थे, ये तो बोझा है, ये तो उदास है, ये बच्चों को मैगी नूडल और पार्ले जी बिस्किट पे बड़ा करेगी. इसलिए मैंने रेस्टोरेंट भी खोल दिया था. तो जो भी नेगेटिविटी आती थी, आई यूज्ड टू चर्न इट इनटू एन एक्शन ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट एंड प्रूव दैट थिंग रॉन्ग. आई नेवर अलाउड माई सेल्फ to go in depression, negativity, or feel sad about my state. I would switch to the solution finding mode. जी. तो ये सिलसिला चलता रहा till to become a biker I was introduced to hydrotherapy to strengthen my shoulders. पानी में उतरी तो पता लगा तैर सकती हूँ. जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंडिंग के लिए मैंने बातें करी कि मैं बाइक बनवाऊंगी, और इसके सिलसिले में जब मैं मेट्रो सिटीज़ जाने लगी, अहमदनगर जैसे छोटे एक टाउनशिप से, तब मुझे पता लगा कि अरे पैरा गेम्स भी कुछ होते हैं. एंड एट द एज ऑफ 36 आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एज अ स्विमर. मेरी शुरुआत स्विमर से हुई, लेकिन स्विमिंग में मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम अ डिसएडवांटेज्ड डिसेबिलिटी क्लास. जो एम्प्यूटीज़ होते हैं और जिनके पैरालिसिस नहीं होता है, वो पानी में बेटर करते हैं. मेरे लिए ये डेड वेट ड्रैग करना बड़ा मुश्किल है, और ठंडे पानी में, क्योंकि हीटेड पूल्स मुझे नहीं मिलते थे. तो फिर यमुना नदी पार करके अपने आप को एक स्टैब्लिश्ड स्विमर बता के
कि मैं कुछ कारणोंवश स्विमिंग छोड़ रही हूँ। इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि मैं हार गई हूँ। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमिंग का बना के और फिर मैंने एथलेटिक्स की ओर रुख किया। सो एट द एज ऑफ 40 आई बिकेम अ सीरियस एथलीट। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और वो मुझे दिल्ली लेकर आया, और वो भी जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा मैम, पैरालंपिक्स के बारे में बताइए आप। 2010 में जब मैं कॉमनवेल्थ खेली तो मुझे पता लगा कि मेरी तो वर्ल्ड रैंकिंग है, मैं तो बहुत अच्छा खेलती हूँ। उसके पहले पता ही नहीं था आपको? नहीं पता था, क्योंकि हमारा एक लाइसेंस बनता है, मेडिकल लाइसेंस, और वेबसाइट देखना वेखना मुझे ज़्यादा पता नहीं था। 2010 आई बिकेम लिटरेट, एंड 2010 I was also joined by my daughter as my attendant. She also got inspired to participate in sports. आज हम मदर डॉटर एक ही जोड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में जो इकट्ठे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में खेलती हैं और खेली हैं और देश के लिए मेडल भी लाई हैं। तो पैरालंपिक्स की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे 2012 में लगा था कि मैं लंदन पैरालंपिक्स खेलूँगी, क्योंकि मैं एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 2 मेडल जीत चुकी थी, और वो भी अपने आप में महिला का फर्स्ट मेडल था। और ट्रेनिंग बहुत स्ट्रगलफुल रही, क्योंकि जब आप 40 वर्ष की आयु में एक रेस्टोरेंट को बंद करके और एक शहर से दूसरे शहर आके ये कहते हो कि मैं यहाँ खेलूँगी, तो किसी को समझ नहीं आया कि 40 वर्ष की औरत क्या खेलेगी। और वो वक्त ऐसा था जिस वक्त पॉलिसीज़ नहीं थी, फंडिंग नहीं थी, और इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स की, और किसी भी स्कीम में हम नहीं आ रहे थे। तो वो एक मुझे पर्पस भी मिला लाइफ में। सो आई डोंट, आप बार बार पूछ रहे हो कि पैरालंपिक्स कैसे रहा। आई थिंक द जर्नी वाज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट। एक पर्पस मिल गया था लाइफ में कि मेरी एजुकेशन को मैं कुछ ऐसे यूज़ करूं कि कोई बदलाव तो आए। शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए चुना था। मैम, अर्जुना अवार्ड्स, पद्मश्री, खेल रत्न, इनके बारे में बताइए। कैसा कैसा एक्सपीरियंस था? यू मस्ट हैव गॉन टू राष्ट्रपति भवन, और एक पूरी सेरेमनी होती है ना मैम, इट्स अ वेरी ग्रैंड, अ वेरी वेरी यू नो वेरी, जिसको कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी देयर। मैम, कैसा लगा आपको? देखिए, जो महिला पूरे आर्मी बैकग्राउंड से आती हो, डिफेंस बैकग्राउंड से आती हो, पति, भाई, पिता, ससुर, सब उस दिन वहाँ मौजूद थे, और मैं राष्ट्रपति जी के घर जा रही थी, और राष्ट्रपति हेड ऑफ द डिफेंस फैमिली होते हैं जी, सुप्रीम कमांडर मैम। सुप्रीम कमांडर जी। तो इस वक्त मेरे घर के सारे अपने छोटे मेडल को चमका रहे थे, क्योंकि मैंने देश के लिए मेडल जीता था। वो चारों पुरुष व्यक्ति जो अपने सुप्रीम कमांडर के घर जा रहे थे, लेकिन मेरे मेडल के लिए जा रहे थे। वाओ। This was a statement of empowerment. This was empowerment through sports. This is what I wanted to tell the world, that it is important for persons with disability to socially integrate, play, get into the mainstream, have policies around it. और जब मैं वहाँ बैठी थी, मेरा ओरिजिनल नाम दीपिका है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दीपा रह गया, पोस्टिंग्स हुई और नाम एंटर कराया, एक वंटन में भर के बच्चों को ले गए, तो मेरा नाम दीपिका से दीपा रह गया। लेकिन उस दिन अगर मेरा नाम दीपिका होता तो मेरे दाहिने तरफ भी एक दीपिका थी और मेरे बाईं तरफ भी एक दीपिका बैठी थी। दीपिका पल्लिकल थी और दीपिका कुमारी थी, और दोनों 18-18 वर्ष की थी, और मैं 42 वर्ष की एक महिला, उनसे 2 गुनी उम्र में और 1/3 शरीर में वहाँ बैठकर उसी अवार्ड को ले रही थी खेलों के लिए। बहुत बड़ा बदलाव का मोमेंट था ये। अच्छा मैम, आप एक बात बताइए कि बच्चे आते होंगे आपके पास मिलने के लिए? बच्चे मिलने भी आते हैं स्कूलों से। वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स में, या उनका जब स्कूल में कोई 1 एक्ट प्ले होता है, उसमें वो मेरी जीवनी को एनैक्ट करते हैं। अच्छा। और स्कूलों में और कॉलेजों में जाके मैं बहुत मिलती हूँ। और अगर आप मेरा पैरालंपिक का मेडल देखेंगे गौरव जी, वो बिल्कुल फेड हो चुका है, और उसके जो स्ट्रैप हैं उसके धागे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं जब भी जिस भी स्कूल में गई, मैंने वो असेंबली में बच्चों के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, फील करो इस मेडल को, ये कैसा होता है। मैंने आज तक उस मेडल को एक डब्बे में फ्रेम में पैक करके नहीं रखा है। अभी भी मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं उस मेडल को अपने साथ लेके जाती हूँ। किसी ना किसी बच्चे ने तो बोला होगा मैम कि मैंने भी जाना है ओलंपिक्स में। बिल्कुल, बल्कि मेरे को एक सीन याद है कि एक स्पोर्ट्स डे के इनविटेशन के लिए
स्कूल के बच्चे मेरे पास आए थे और उनका स्कूल का जो स्पोर्ट्स कैप्टन है वो बच्चा 11वीं क्लास का, जैसे ही उसने उस मेडल को हाथ में लिया, ही फेल लाइक अ कट ट्री एंड ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। आई थिंक वो ऐसे मोमेंट्स मेरे लिए मेडल जीतने के मोमेंट से भी बड़े हो जाते हैं। वो उस वैल्यू को समझा, वो इतनी ज़ोर से रोया एंड आई आस्क्ड हिम बेटा रोए क्यों, और वो कहता है मैम इसके पीछे की मेहनत कितनी रही होगी। आप बताइए कि 11 साल का बच्चा अगर इस सोच पे आ सकता है तो फिर हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं यंग जनरेशन को। तो मैम पैरालंपिक्स की फील्ड में आपको क्या लग रहा है मैम, व्हाट इज़ द चेंज दैट हैज़ हैपेंड रिसेंटली इन इंडिया? आपने बोला कि एक ज़माने में आप ही ने बोला कि पॉलिसीज़ नहीं थी, अब पॉलिसीज़ आई हैं, तो क्या पॉलिसीज़ आई हैं और पिछले कुछ सालों में पैरालंपिक्स की फील्ड में क्या सपोर्ट ज़्यादा मिला है या पॉलिसीज़ नई आई हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल पॉलिसीज़ नहीं आई हैं। जब आपके खुद के प्रधानमंत्री स्वयं अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि खिलाड़ियों की तैयारी कैसे चल रही है, वो खिलाड़ियों से बात करने लगे हैं, वो जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो उनसे अपने घर पर बुलाकर उनको शाबाशी देते हैं। जैसे ही मेडल जीतता है पहला फ़ोन आपके प्रधानमंत्री का वहीं पर आता है। पूरा संसार हैरान है कि ये अचानक जो रेवोल्यूशन आया है पैरा स्पोर्ट्स में इंडिया में। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं गौरव, तो हम लोग 3 महिलाएं थीं जो 2016 में गई। 2012 में तो कोई महिला गई नहीं, मैं भी नहीं जा पाई, और 2016 में 3 महिलाएं गई थीं, जिसमें से मैं एक कॉम्पिटिटिव स्लॉट में गई थी और 2 बाइपर्टाइट स्लॉट में गई थी। तो देखा जाए तो एक ही गई थी। लेकिन अगर और यहीं पे मैं टोक्यो को देखती हूँ तो 14 महिलाएं गई थी। तो आप 3 से 14 मतलब 350% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। पहले हम कुल 19 खिलाड़ी खेलने गए थे 2016 में, जबकि 2020 जो 2021 में हुआ, डिस्पाइट कोविड-19 19 हम मेडल लेकर आए हैं। तो ये इतना बड़ा जंप जो आया है, that is a result of good policies, inclusive policies, better infrastructure, better equipment support, better funding, better taking care of mental, emotional, physical, psychological care of persons with disability in the country. एक थिंकिंग चेंज हुई है मैम। Absolutely. बिल्कुल ये थिंकिंग चेंज का ही नतीजा है कि गौरव आर्या शो में आज दीपा मलिक बैठी। अरे मैम हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, कैसी बात कर रहे हैं आप मैम, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस। मैम एक और बात बताइए ना, आपने जैसे बच्चों के मोटिवेशन की बात करी, फिर आपने बताया कि पूरा स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम चेंज हो गया। जी, you know it's the entire sports ecosystem, especially for Paralympics para athletes, it has changed. इट इज चैलेंजिंग। It is challenging nonetheless. बिकॉज चेंज इतना जल्दी आया है जी। दैट वी एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड अब खुशी की बात यह है कि मैंने 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने देश को देने के बाद 2020 में फिर मैंने अध्यक्षा की कमान संभाली। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमिटी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ दिस चेंज, medium of this change by virtue. I think you've been a flag bearer, ma'am. I think very by humble of virtue you to say so. जब मेरा पहला मेडल भी आया, वो देश का पहला महिला मेडल था। हालांकि वो पहला महिला मेडल 2016 में आया, मुझे 10 साल लगे। 10 साल कड़ी मेहनत, रोज उठना इस शरीर में, डायपर्स पहनना, अपना ब्लैडर बाउल मैनेज करना, अपना घर छोड़कर दिल्ली में एक कमरे में रहना, एक गली में रहना शाहपुर जाट की, क्योंकि वो मुझे पास, क्योंकि जब मैं कहीं और रहती थी मेरी गाड़ी पे व्हीलचेयर का साइन भी बना होता था। मैंने गाड़ी चलाना सीखा टू बैटल द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी चैलेंज है, इम्प्रूवमेंट है, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत जल्दी बदल रहा है, लेकिन तब तो बिल्कुल भी नहीं था। और मैं गाड़ी चला सकती हूँ, गाड़ी की चाबी हाथ में लेके बैठी रहती थी, लेकिन साइड में जो कार चेप के पार्क करके चला जाता था, उस बंदे का पता ही नहीं होता था कि वो कौन है, कहाँ ढूंढें। 2-2 घंटा मैं वेट करती थी, फिर मैं किसी तरह ऑटो में लटक के जाया करती थी। तो फिर मैंने, जो मेरा एरिया है ऑफ ट्रेनिंग, उसके पास, तो जो सबसे पास मुझे कमरा मिला विच आई कुड अफोर्ड वॉज शाहपुर जाट। और मुझे ये भी सुनना पड़ा कि फैमिली का नाम डुबो रही है, एक सर्वेंट क्वार्टर जैसे कमरे में रह रही है। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। हमें व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम्स नहीं मिलते थे, डायपर चेंज करने के लिए अभी भी हमें वो बेड्स एट द करेक्ट हाइट मुश्किल हो जाता है बहुत जगहों पे। तो दिस सेंसिटिविटी एंड दिस सेंसिटाइजेशन इज़ व्हाट आई कुड ब्रिंग टू द टेबल। मैं ये बात खुल के करती थी, और ऐसा नहीं है कि सुनने वाले नहीं हैं, अब तो हर बात सुनी जाती है।
इवन नाडा इज़ जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो भी बहुत क्लोजली वर्क कर रहा है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ टू टेक यूरिन फॉर एंटी डोपिंग टेस्ट. सो ये चीज़ों की बातें पहले नहीं होती थी. So it's become more, the system is more aware and more feeling. Absolutely. If I may put it that way. And वो आएगा कहाँ से? It is definitely top to bottom trickle down होता It has है. to be top driven, ना होता नहीं है. हाँ. So आज हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री का एक खास फोकस है. डिसेबिलिटी एक्ट भी आप देखिए, पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थी, अब 21 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड हो गई हैं. कम से कम 4 एक्सेलेंस सेंटर की नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है, शायद काम ख़त्म भी होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर पैरा एक्सेलेंस सेंटर. Excellent. मेरा मैम आखिरी सवाल आपसे है. जी. यहाँ से कहाँ फिर? What are the next? A life full of achievements. मैं तो सोच रहा था एक सांस में बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाया है, to take another breath. बट एक बात बताइए मैम, इसके बाद कहाँ पे? इसके बाद गिव बैक. मुझे लगता है द क्राउन दैट वेयर्स द हेड दैट वेयर्स द क्राउन वेयर्स द वेट. और मुझे अपने इस वेट का एहसास है. ये जिम्मेदारी का वज़न है. ये वज़न है कुछ वापस देने का, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला सम्मान के रूप में, मेडल्स के रूप में, सौभाग्य के रूप में, मुझे लगता है कि अब मुझे ये वापस देना है. तो कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हमेशा करूँगी जहाँ पे मैं आई कैन गिव बैक टू माई कंट्री. गिव बैक पॉजिटिविटी, गिव बैक मोटिवेशन, गिव बैक मोर वर्क इन द फील्ड ऑफ पैरा स्पोर्ट. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम, बहुत अच्छा लगा. दोस्तों, दीपा मलिक जी के साथ उन्होंने बताया फौजी बैकग्राउंड की हैं और किस तरीके से अपनी डिसेबिलिटी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और सिर्फ लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई जीती. देश को कितने सारे 2 दर्जन तो इन्होंने इंटरनेशनल मेडल लगभग दिए देश को. और आप देखिए, खेल रत्न देख लीजिए, पद्मश्री देख लीजिए, अर्जुन अवार्ड और पैरालंपिक्स, मतलब द लिस्ट इज़ एंडलेस. और आज ये काम कर रही हैं और कह रही हैं कि कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में जब से नई सरकार आई है, बहुत चेंजेस आए हैं. एवरीथिंग हैज़ बिकम टर्बोचार्ज्ड. तेज़ी से एंटायर इकोसिस्टम ऑफ पैरालंपिक स्पोर्ट्स हैज चेंज्ड इन इंडिया, और इससे बहुत लोग बेनिफिट भी ले रहे हैं. दोस्तों, ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I'll meet you shortly with another very special and prominent guest. Stay with me for next week and have a great weekend. Jai Hind.